Hi everyone, welcome to K Watches Dramas. I hope you guys are having a lovely day. मैं वेट कर रही हूँ, रिव्यू अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. जल्दी से जाके लाइक बटन दबा दीजिए. इट विल मीन अ लॉट टू मी. बहुत सारे नए लोगों ने कमेंट्स किया है. मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी वीडियो में. मैं सबके यूजर नेम्स मेंशन करूंगी. थैंक यू सो मच फॉर शोइंग मी सो मच अप्रिसिएशन. आप लोगों ने नए बैकग्राउंड की रिक्वेस्ट की तो मैं थोड़े बहुत चेंजेस कर रही हूँ. कुछ पेंटिंग्स मैंने ऑर्डर कर दिए हैं. अ लॉट ऑफ पीपल वर रिक्वेस्टिंग aesthetics and all of that, so वो आहिस्ता आहिस्ता सब आ जाएगा. But for now, I hope you guys like this new background of mine. मैंने थोड़े बहुत changes करने की कोशिश किया है. Let me get into the comments now. Pakistan News 234. Waiting for your biryani first episode review. बिरयानी आया कहाँ? बिरयानी आया कहाँ? AGAM, agree with you. I think Popo is wanting the fire to spice this up. She has undertones of manipulation for sure. Ifra is definitely gone, and if Farhad's face after that water spill was anything to do by, we know he wasn't going to let her off the hook for that. 100%. इफ्रा को या तो इसने कहीं किडनैप कर दिया है और ये 15-16 एपिसोड के बाद इसका वो चैप्टर फिर से खोलेंगे, क्योंकि अभी बहुत चैप्टर्स हैं, अभी बहुत कार्ड्स इन्होंने खोलने हैं. अभी नमीर को लाना है, अभी इन्होंने फियोन्से वाला सारा हैंडल करना है, अभी इन्होंने बहुत सारे कार्ड्स खोलने हैं. Sami Khatun, I agree with you. His performance is very nice in this drama. Also, Ishkila is very good. Thank you. You should give it a watch in your free time. Ishkila, I watched a few episodes, but then it got a little slow, so I lost interest. Ofers, is Suraya playing with Mehmet? Absolutely, yes. Mehmet is nothing but a sacrificial lamb for Popo. Coming to the episode, I felt it was a big drag. 40 minutes का show, 20 minutes cover हो सकता था, 100%. But हमें ये तो पता ही है, सुन मेरे दिल में क्या हुआ था. तो हमें पता है कि इनको शो तो चला के इन्होंने ऑफ कोर्स 40 मिनट्स क्या, ये तो 5 मिनट्स की एपिसोड पूरी 40 मिनट्स में खींच सकते हैं. दे आर वेरी टैलेंटेड with that thing. Hassan BZ, another great video. Your reviews are always so fun to watch. You've got a unique style that makes them stand out. Keep shining. You're doing amazing. Thank you, Hassan. That's really sweet. Kaval 1985. Hi Kay, I watch your videos from New Zealand. Absolutely love your reviews. The way you roast some dramas is absolutely pure comedy. Honestly, some dramas were just made to be roasted and you do it like a pro chef. Thank you so much. Roasting ना मैंने थोड़ी सी notch down कर दिया था because Nadeem Beg is following me on Instagram. ARY का CEO is following me on Instagram, and Abdullah Seja or something. These are all like ARY people that are following me. तो मैंने कहा कि कहीं ज़्यादा ही लोग offend ना हो जाए और बुरा ना लग जाए. लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप रोस्टिंग वाला तड़का जो है वो डाला करें, तो definitely whatever you guys want, honestly. Saman Ayub, आप एक्टिंग और फनी सिंगिंग बहुत जबरदस्त करती हैं. थैंक यू समन. Yasmin Sajad, watching from Dubai. I like your videos. Thank you so much, and I love Dubai. I went to Dubai New Year's last year just to celebrate New Year's. I love Dubai. Faryal Khurram, hi, love the video as always. Your reviews are on point. Super duper excited to hear your take on Tamasha. Love of तमाशा मैंने देखने की इतनी कोशिश की, द फर्स्ट एंड द सेकंड एपिसोड. मेरे सर में दर्द शुरू हो गया. और इतने सारे ड्रामे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तमाशा को कहाँ फिट करूंगी. बट I'm trying to maneuver things a little bit right now. But thank you so much Faryal. मल्हान, सही बात है, हमको यहाँ लगा कि सर मंटो ही तो है. एग्जैक्टली वो रिश्ते वाला हमें लग रहा था कि सर मंटो ही कहीं इसके भाई होंगे, बट नहीं थे वो. Sadav Gohar, hi there. You're doing a stellar job of doing reviews. Most amazing part when you copy the title songs of dramas. Can you please share the setting spray you were using in your video? Keep it up. The setting spray was probably the Max Fix Plus that I was using in my video. Probably was that one. Or Charlotte Tilbury. Both of them have transparent bottles. Nabi Fatma, hey, I'm your new subscriber. Hi, how are you? Ishmael Ali. I love your reviews and your singing talent is outstanding. I think you're a good roaster. So do Tamasha review. That's going to be hilarious. I will try my best. लोग offend हो जाएंगे अगर मैंने तमाशा की बात की, क्योंकि आपको पता है लोग तमाशा से कितने ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हैं. तो और वो उनके अपने लोग हैं, वो उनके अपने पाकिस्तानी लोग हैं. तो मैं एज एन आउटसाइडर, एज ए नॉर्थ अमेरिकन, अगर उनके अपने लोगों के बारे में बात करूंगी तो मुझे लगता है कि वो लोग बहुत अफेंड हो जाएंगे. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, स्लोली एंड ग्रेजुअली, आहिस्ता करके मैं घुसने की कोशिश करूंगी उनके ग्रुप में. Tasmina, yes, seems so. Episode 7 was totally bakwas. Nothing was going on. So many characters. Only now track is going on. Ifra, what about others? हाँ, सारी दुश्मनी जो चल रही थी बिनी अमीन की, ये सब कुछ उन्होंने होल्ड पे कर दिया. हकीम साहब को उन्होंने गायब कर दिया. कौन थे वो? हकीम साहब थे. मियाँ जी को गायब कर दिया एपिसोड से. और अब इनको ले आए ना, फियोन्से को.
रू रेजा, दुआ करे वो मिल जाए इंस्टेड ऑफ दुआ करे कि वो जिंदा हो। वो भी एक वियर्ड ही डायलॉग था, दुआ करे वो जिंदा हो। अपनी बेटी के लिए कौन ऐसे कहता है? वाइब्स एंड एडिट्स, नाइस, थैंक यू। रू रेजा, फिजिक्स के प्रोफेसर कम और फिलोसफी की ज्यादा लग रहे थे, दैट्स ट्रू। अमीमोन जुलिका, actually they're not showing Karachi, it's in Lahore. Yeah, I mean the same situation, right? Karachi, Lahore, it's like, I'm sure if anything if anything, one city is probably larger than the other, but it's the same scenario. I mean, इतने बड़े सिटी में उसी रोड पे जहां सर मंटो चल रहे थे वहीं फरहाद की गाड़ी आके रुक गई, उनको ढूंढ भी लिया। सो स्टूपिड। तस्मीन मुंतहा, आई ऑलरेडी हैड कंप्लीटेड माय बैचलर्स व्हेन आई वाज 22. आई थिंक ऑलमोस्ट इन एवरी कंट्री बैचलर स्टार्ट व्हेन यू आर 18. मैन, आई डोंट नो पाकिस्तानी स्टफ। द थिंग इज, इफ यू से समथिंग अबाउट ओ दिस हैपेंस दैट हैपेंस, पाकिस्तानी पीपल स्टार्ट अटैकिंग यू एंड दे आर लाइक हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, जब पता नहीं है तो कुछ बोला मत करो, यू नो। सो आई जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मेकिंग कमेंट्स लाइक दैट। सानिया माहम, सर मंटो एक्चुअली सेड कि मैं डॉज किया है दुश्मन को, उनको धोखा देके आ गया, यानी अपनी गाड़ी में नहीं आया तो उन्हें पता कैसे चलेगा। एग्जैक्टली इस बात पे मिस मारिया को गुस्सा आया था कि ये मुझे यूज कर रहा है। आई थिंक मिस मारिया को ना अब सर मंटो से दूर रहना चाहिए। हाय योर रिएक्शन, हार्ट हार्ट हार्ट, थैंक यू। शॉर्ट स्फीयर, अच्छा वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई और ना ही आपने पॉइंट आउट की, वो जो लड़का जो महमल का फियांसे है वो 2 दफा महमल के घर में नजर आया जब वो यूनिवर्सिटी से आती है, तब भी भाई वो एपिसोड 8 में आया है, वो आज हमने डिस्कस करना है। एपिसोड 7 में कहाँ था? एपिसोड 7 में तो बस वो रिश्ता लेके आया था और फिर रात का सीन खत्म हो गया था। वो तो एपिसोड 8 में हमें पता चलेगा ना कि अब वो तो बंदा उधर ही बैठ गया है। The Usman Khalid, the topic is resonance. Okay. Urva Yusuf, hey, I have something to say. Instagram पे casual setting 20-30 seconds की हम आसानी से देख सकते हैं। When it comes to YouTube, I don't know what the reason is, but YouTube पे थोड़ा formal होना पड़ता है। No, I 100% agree. YouTube पे formal होना पड़ता है। My getup will still be super casual, but I understand, like, you know, people want like aesthetics and all of that, and I'm working towards it. अभी तक तो मैंने ये सब कुछ किया, आगे भी I'm working towards a lot of things. Nisha 16, I love your review, haha, without sugarcoat, you just say all the facts. It's just my style यार। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो बात जैसी होती है ना मैं वैसे ही कह देती हूँ, to be honest। like क्या लपेटूं अब मैं शुगर में बैठ के, यू नो। फतिहा में भी ये कह सकते थे उसकी किडनैपिंग ना हो गई हो। या दैट्स अ गुड आइडिया फतिहा। रफत खान, सुरैया बहुत चालाक है, बट शी इज द एसेंस ऑफ दिस ड्रामा, सम डायलॉग्स वर अमेजिंग। फरहाद किल्ड इफ्रा। इफ एवरीबडी इज सेइंग फरहाद किल्ड इफ्रा, देन आई एम प्रीटी श्योर ही किल्ड हर। इंस्टाग्राम पे 2 लोग मुझे कह चुके हैं कि सुरैया किल्ड इफ्रा, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। समन अयूब, सच में मुझे भी लग रहा था कि सज्जल के साथ वो लड़का अच्छा लगता है। या आई मीन ही इज फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हिम। सोबिया खान, रोस्टिंग किया करे, फैंस से ना डरे, यही तो मजा है। अच्छा ठीक है। बिलाल अहमद कह रहे हैं इट्स फैंटेसी, कीप फैंटेसी, मतलब उर्दू लिटरेचर को आप फैंटेसी कह रहे हैं, आप किस चीज को फैंटेसी कह रहे हैं? तैयबा महमूद, आई फाउंड सुरैया टू बी वेरी conniving. According to me, she will definitely use Mehmal for her son's revenge. Absolutely. She will use her own niece for the son's revenge. I 100% agree. फतिया एमल, आप लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं। What? Anurani, the conversation between Sir Manto and Maria is so boring and illogical. आई थिंक 2 बोर, एक मिस मारिया बेचारी फिर भी थोड़ा सा सेंस बनाती है, लेकिन सर मंटो तो पता नहीं क्या ही बातें करते हैं। मुझे तो सर मंटो की कोई बात ही ना समझ आती है और ना मुझे समझ आने का कोई, लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट ही हैज टू से, बिकॉज ही सेज द मोस्ट स्टूपिड थिंग्स इन द वर्ल्ड। मैं मंटो नहीं हूँ। एपिसोड नंबर 8 क्या क्रीपी एपिसोड थी भाई, ये क्या क्रीपीनेस की इंतहा जिसको मैं कहूँ, इंतहाएं सारी टूट चुकी हैं क्रीपीनेस की, इतनी क्रीपी। मतलब आई एम शॉक्ड at the level of writing. I am shocked at the, I mean, the director had no say, like the producer had no say. What was going on? हो क्या रहा था? मतलब मैं इतनी कंफ्यूज मैं लाइफ में, I'm just so shocked. हम सुन मेरे दिल को गालियां दे रहे थे, लेकिन फिर ये एक अलग ही लेवल की कंफ्यूजन है। वहां तो पूरा का पूरा ड्रामा ही ट्रैश था ना, मतलब इट बिलोंग्ड इन अ ट्रैश कैन। लेकिन यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने बड़े डायरेक्टर, वो भी लाइक ही इज लेटिंग इट गो, ही इज लेटिंग थिंग्स गो। व्हाई? लाइक यू हैव नो से। आप एक लाइन नहीं चेंज करवा सकते, 2-3 लाइनें नहीं आप चेंज करवा सकते, क्यों? एपिसोड शुरू होती है भाई,
और सजल जो है वो अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ जा रही होती है, तो वहाँ कोई बोलता है कि अरे ये तो इफ्रा के डैड है, तो कहती है आप इफ्रा के डैड हैं, आप इफ्रा के डैड हैं। वो कहते हैं हाँ मैं इफ्रा की फ्रेंड हूँ। तो उसके डैड कहते हैं कि बेटा आप इफ्रा की फ्रेंड है, आपको कुछ पता नहीं है, दोस्तों को भी कुछ नहीं पता। वो कहती है कि नहीं अंकल वो तो 6 दिन से मिल नहीं रही है। ठीक है, वो ये कह देती है ठीक है बेटा मैं ढूंढ लूंगा। तो वहाँ सज्जल की हेल्पिंग नेचर है, बताया कि महमल की हेल्पिंग नेचर है, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान है इफ्रा के लिए। तो कहती है नहीं नहीं आप मेरे साथ आए। वो अंकल को अपने घर ले जाती है। तो अंकल शुरू शुरू में तो यहाँ तक अंकल ठीक है, बिल्कुल सही, मुझे उनका कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है अंकल में। अंकल पहुंचते हैं घर, कहते हैं वो मैं तो समझ रहा था कि हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, वहां तक भी ठीक है। तो वो लड़की कहती है कि नहीं, मतलब इम्प्लाई वो यही करती है कि यहाँ तो पुलिस वाले हमारे घर आते हैं, तो ये इम्प्लाई उसने कर दिया। अंकल कोई बेवकूफ तो नहीं है, उनको भी समझ आ गया कि ये है कोई इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल पीपल, जहाँ पे लोग, वो जब लड़की कह रही है कि नहीं नहीं पुलिस में तो इंसाफ नहीं मिलता, हमारे घर पुलिस आती है और फिर हम लोग जो है ना इंसाफ दिलवाते हैं। अंदर जब जाते हैं, जैसे ही अंकल अंदर घुसे, अंकल को पता नहीं क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही कि अंकल जैसे कॉरिडोर में घर के घुसे हैं, ये आपका घर है, नहीं और किसका घर होगा वो, मतलब वो आपको किसी और के घर क्यों लेके जाएगी, वो अपने ही घर लेके आएगी ना, ये आपका घर है। अच्छा एक वो लूजर आदमी, वो फियॉन से हर जगह वो उसका रास्ता रोक रहा है, वो एक एक सेकंड में आ रहा है उसके सामने, एक एक सेकंड में, मतलब मेरे सामने अगर कोई बार बार आए जिसको मैं पसंद भी करती हूँ, पहले तो महमल इसको पसंद नहीं करती, सिर्फ घर वालों की खुशी के लिए, एंड यू नो शी जस्ट लाइक ओके कोई खराबी नहीं है, कोई नहीं मैं इसके साथ शादी कर लेती हूँ, कोई इशू नहीं है ना, तो उसके साथ एंगेजमेंट कर रही है, ध्यान उसका उधर ही मंटो सर में लगा हुआ है, लेकिन एंगेजमेंट इससे ये कर रही है, चलो कोई बात नहीं। मैं अगर एज अ गर्ल किसी को पसंद भी करती हूँ और वो एक एक सेकंड में आके लड़का मेरे सामने खड़ा हो जाए, मैं भी उलझ जाऊंगी। आई विल बी लाइक व्हाट आर यू डूइंग मैन, व्हाई यू ऑलवेज इन माय वे, व्हाई यू ऑलवेज हियर। किसी कॉरिडोर में जाए उसकी शक्ल, किसी डोरवे में जाए उसकी शक्ल, किसी खिड़की के पास खड़े उसकी शक्ल, मतलब तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, तुम्हें कोई तैयारी नहीं करनी, तुम्हारी भी तो मंगनी हो रही है ना, तुम्हारी कोई फिटिंग्स नहीं होनी, कोई तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी, दफा होना यहाँ से। तुम एक सेकंड में तुम सामने आ रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हो। पहली एपिसोड में जब तुम्हारा इंट्रोडक्शन आया था मैंने तुम्हारी बहुत तारीफें की थी, तुम अच्छे थे, अच्छे हो, बल्कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू आर बीइंग वेरी इरिटेटिंग। एक एक सेकंड में तुम क्यों उसके सामने आके खड़े हो रहे हो, यू हैव नथिंग एल्स टू डू, कुछ नहीं हो रहा और तुम्हारी जिंदगी में। एनीवे अंकल पे वापस आते हैं, तो वो आता है कि हाय महमल। तो महमल उससे कह देती है कि उसको एक स्माइल दे देती है, हाय महमल, हाँ हाँ तो मैंने स्माइल दे दी है ना, इसका मतलब है गुड आफ्टरनून, ठीक है समझ नहीं आई, ये मुझे देखने आए हैं। पहले तो महमल आप क्यों बताओगे एक स्ट्रेंजर को जिससे आप 5 मिनट पहले मिली हो, ये मुझे देखने आए हैं, वाई विल यू इवन गिव हिम दैट इन्फॉर्मेशन। चलो अगर आपने बोल भी दिया, अंकल क्या कह रहे हैं, देखने क्या आए हैं, देख तो पहले ही चुके थे, यहाँ तो बस ये कंफर्म करने आए हैं कि क्या तुम सच में इतनी खूबसूरत हो। ये Why is a 70-year-old uncle telling that to a 22-year-old girl? तुम्हें देखने आए हैं, जो लेडीज मुझे देख रही हैं, अगर आपके डैड के फ्रेंड्स कभी आपको इस तरह बोले, सिर्फ यहाँ ये देखने आए होंगे क्या तुम सच में इतनी खूबसूरत हो। लड़का अच्छा है वैसे, मतलब मैं अगर किसी से 5 मिनट पहले मिली हूँ और कोई अगर मुझे बता भी रहा है कि यहाँ ये मेरे ना इस तरीके से कोई बात चल रही है, तो मैं अपना इतना, मतलब मैं इतनी उसके साथ कंफर्टेबल हो जाऊंगी कि मैं उसको ये बोलूँ कि अच्छा लड़का है, लड़का अच्छा है वैसे। फॉर व्हाट रीजन, व्हाई विल आई, व्हाट इज दिस कंफर्ट जोन, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। मतलब वो ऐसा भी नहीं है कि इफ्रा इसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी, बचपन की दोस्त थी, और ये अंकल इस बच्ची को बचपन से जानते हैं महमल को, तो चलो मुझे समझ आता कि भाई आपका कंफर्ट जोन है, आप बचपन से उसकी दोस्त हैं, आपके डैड जो, उसके डैड जो है वो आपको इस तरीके से कह रहे हैं, आप 5 मिनट पहले मिली हैं, उस बंदे को अपनी बेटी का नहीं पता, वो तुम्हें आके कह रहा है कि बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा लड़का है। क्यों कह रहा है वो ये बहुत अच्छा लड़का है? मुझे उस अंकल पे, अंकल ही इज अ ग्रेट परफॉर्मर, हर ड्रामे में अंकल बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, ग्रेट परफॉर्मर। फरहाद तुमने जहां भी छुपाया है ना अपनी बंदी को, कौन है वो, इफ्रा, अंकल को भी उधर ही वहीं तुमने छोड़ के आना है। अंकल बहुत इरिटेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हैं, कोई थोड़ा बहुत भी नहीं। मतलब अगर किसी की बेटी गुम हो जाए, गॉड फॉरबिड, किसी की बेटी से 6 दिन से राब्ता ना हो रहा हो, हालत खराब हो जाए पेरेंट्स की, मतलब हाल से बेहाल हो जाए, उनको समझ ना आ रहा हो कि यार किस तरीके से उठना है, बैठना है, सांस लेनी है, किस तरीके से जो है इंसान बिल्कुल वैसी वाली हालत हो जाए। देखने आए होंगे कि तुम कितनी खूबसूरत हो, लड़का अच्छा है वैसे। डूड, व्हाई इज योर कैरेक्टर बिहेविंग लाइक दिस, इट मेक्स नो सेंस। आइए अंकल को बिठाती हैं, आइए आइए, वहां आ जाते हैं सिराज अमृतसरी।
सिराज अमृतसरी अपने गैंगस्टर मोड में, क्या कहा? कब से बात नहीं हुई, कब से राब्ते में नहीं है, क्या कहा? अंकल के तो होश उड़ रहे थे, वो होश जो उन वाले अंकल के उड़ने चाहिए थे, इफ्रा के डैड के, वो सिराज अमृतसरी के होश उड़ रहे थे सुन के कि ये क्या बकवास नॉनसेंस हो रही है यहाँ पे। मैं बिल्कुल सिराज अमृतसरी के साथ हूँ, चाहे वो गैंगस्टर हो, जो भी कितने भी बड़े डाकू हो, चोर हो, गुंडे हो, आई डोंट केयर, आई लाइक द गाय। अगर आप बोलोगे बायस्ड है तो यस आई एम बायस्ड बिकॉज हिज कैरेक्टर मेक सेंस टू मी, दैट्स व्हाई आई एम बायस्ड टुवर्ड्स हिम। ये जो अंकल जी है, इनको क्या मैं बोलूं। मिस मारिया के सीन पे आते हैं। मिस मारिया ड्राइव कर रही हैं और वो हुमायूं से उनके बराबर में खड़े हैं। मिस मारिया कह रही हैं कि आप तो बहुत ज्यादा डर गए होंगे। वो बहुत नॉनशलांटली, नहीं डरा तो नहीं था, झूठ मत बोलिए मंडो साहब, आप बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डर गए होंगे। नहीं, गार्ड्स थे उसके आसपास, तो बहुत ज्यादा गार्ड्स थे, लेकिन देखने में वो एक्चुअली इतना खतरनाक है नहीं जितना दिखता है। एक्चुअली वो है बहुत मासूम, वो है बहुत शरीफ। And Miss Maria is just looking at him like, what are you talking about, dude? Like, what is wrong with you? And fair enough, Miss Maria का कैरेक्टर भी मुझे, वैसे तो वो भी बहुत कोई कम वियर्ड नहीं है, लेकिन ठीक है, इस कैरेक्टर में वो समझ आ रही थी मुझे। वो तो हाथ पैर जोड़ के मुझसे माफी मांग रहा था। पार्टी वाली रात ना उससे गलती हो गई। वो उस तरह का है नहीं बेचारा, वो उससे गलती, वो तो बच्चा है ना, बहुत ही सूफी आदमी है वो बहुत शरीफ है। मतलब मुझे लग रहा था कि पता नहीं फरहाद बिन यामीन की बात हो रही है या किसी फरिश्ते की बात हो रही है। सर मंटो, आप 50 साल के हैं, आपको अच्छे और बुरे में फर्क नहीं समझ में आ रहा। एक लड़का आपको चला रहा है, मतलब लिटरली चला रहा है आपको, और आप घास चरे जा रहे हैं, मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद यू। अमृतसरी वाला सीन ना लिटरली बेस्ट सीन था पूरी एपिसोड का। हुआ क्या है, वो उससे पूछते हैं ना, ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं, हुआ क्या है? वो कहती है अब्बा वो ना 6 दिन से फोन नहीं उठा रही, 6 दिन से अपार्टमेंट से गायब है, 6 दिन से यूनिवर्सिटी भी नहीं आई। तो उसके डैड जो है वो इनसे पूछते हैं अंकल से कि आप पहले क्यों नहीं आए। अंकल उससे कहते हैं वो ना कभी कभार फोन उठाती थी। तो सिराज अमृतसरी हैं सो फनी है। तो सिराज अमृतसरी कहते हैं वो आपकी सगी बेटी है। सज्जन उससे कहती है देखिए अब्बा, आप ना इधर उधर के सवाल छोड़े, आप बस इनकी ना बेटी मिलवा दें इनको। यार इतना फनी, वो मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। सिराज अमृतसरी तो इंतहा से ज्यादा लाइक अ हेलीकॉप्टर पेरेंट है ना। उनके सामने ये अंकल कह रहे हैं कभी कभी फोन उठाती थी। कि क्या मतलब कि अंकल इज लाइक है कितने अरसे से रह रही है यहाँ पे? तो अंकल कहते हैं 2 साल से। तो 2 साल में कितनी बार बात हुई है? मुझसे कहता है 8-9 बार। अंकल का तो होश हवास उड़ गए उधर ही सिराज अमृतसरी के। उन्होंने कहा भाई ये तो पूरी फैमिली 2 नंबर है, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, मुझसे ज्यादा 2 नंबर तो ये लोग हैं। ये व्हाट इज हैपनिंग इन दिस फैमिली। ही जस्ट रन्स आउट ऑफ द ड्राइंग रूम, ही रन्स आउट ऑफ द ड्राइंग रूम। और वो बस कहते हैं कि मैं ना एसपी से बात करवा दूंगा। सज्जल उनके पीछे पीछे जाती है, बाबा उनकी हेल्प कर दें। वो कहते हैं हाँ मैं एसपी से बात करवा दूंगा, बट इससे ज्यादा आई कैन नॉट हेल्प यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी लड़की तुम्हारी दोस्त थी क्यों भाई? 100% कोई भी पेरेंट यही कहेगा ना कि एक लड़की जिसके इतना शेडी किस्म का कुछ चल रहा है वो तुम्हारी दोस्त क्यों है? किसी के भी पेरेंट यही कहेंगे, चाहे वो सिराज अमृतसरी हो चाहे वो कोई भी हो। अच्छा वहां पे ये हो रहा होता है कि अच्छा फिर पुलिस पहुंच जाती है इफ्रा के घर पे और सब तलाशी वलाशी लेते हैं। तो उनको समझ आ जाता है कि यहाँ तो किडनैपिंग हुई है, जोर जबरदस्ती हुई है, क्योंकि इफ्रा की ईयरिंग मिलती है कारपेट में से। एंड दे स्टार्ट लुकिंग अराउंड। तो वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके अब्बा बेचारे रोने लगते हैं। तो उस वक्त मुझे अंकल पे थोड़ा तरस आ गया था। एनीवेज फिर दिखाते हैं कि सज्जल की तो घर में तैयारियां हो रही हैं और ज्वेलरी सेट्स आ रहे हैं, कपड़े आ रहे हैं, और ये हो रहा है और यूं हो रहा है। और सुरैया बड़ी अपनी मैनिपुलेटिव नजरों से जो है ना सबको देख रही है। इट वाज सो फनी। एनीवेज यहाँ जो महमल की जिंदगी में प्रॉब्लम होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सर मंटो की जिंदगी में वही प्रॉब्लम होती है। तो मिस मारिया जो है वो उनको फोन देती हैं सर मंटो को, बिकॉज सर मंटो पहले ही मिल चुके हैं अंकल जी से। वो कह देती है यार कि 6 दिन से मेरी उससे बात नहीं हुई क्योंकि मैं तो उससे बहुत ज्यादा नाराज थी। सर मंटो का फोन आ जाता है महमल के पास ना, और मेरी उससे कोई बात नहीं हुई क्योंकि क्यों नाराज थी आप उससे? वो कह देती है इस वजह से नाराज थी कि वो क्यों फरहाद को लेके आई। तो क्या हुआ लेके आई तो? देखो फरहाद बिन यामीन का बेटा है और वो उसकी गर्लफ्रेंड थी,
ओह गर्लफ्रेंड थी। सर मंटो यू आर सो स्टूपिड। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट सर मंटो ऑनेस्ट। अच्छा सज्जल जो है वो बात करके जा रही होती है अपने डैड से, फिर वो मनहूस सामने आ जाता है उसका फियांसे। मतलब तुम इतने इरिटेट, बहुत इरिटेट कर रहे हो, अब बार बार उसका रास्ता रोक रहे हो, उससे अपनी स्टोरीज बता रहे हो। शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। मतलब तुम इतने डम हो कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा सामने वाली बंदी अभी कहीं और लॉस्ट है। शी इज नॉट वांटिंग टू टॉक टू यू एट ऑल। फिर भाई फाइनल सीन जो है ना बहुत ही फनी सीन, जहाँ पे इफ्रा जो है वो फिर भाई फाइनल सीन जो है ना जो बहुत ही फनी सीन है, इफ्रा के डैड जो है वो पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे होते हैं कि पुलिस ऑफिसर जो है उनके पास फ़ोन आता है, तो फ़ोन पे वो बता देते हैं कि फरहाद 100% इन्वॉल्व है और लड़की को उसी ने किडनैप कराया है। 5-6 दिन हम ढूंढेंगे, देखेंगे, मिल जाती है तो मिल जाती है, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते अपनी तरफ से। फिर हम ये डिक्लेयर कर देंगे कि लड़की मर गई, लड़की गायब हो गई है। अब उसके डैड बेचारे सामने बैठे हुए हैं। डैड पे मुझे शुरू शुरू में तो बहुत गुस्सा आ रहा था जब वो सज्जल के साथ क्रीपी हो रहे थे, लेकिन फिर मुझे उनके लिए बुरा भी लग रहा था बेचारे। तो वो जो पुलिस ऑफिसर है वो उससे कहते हैं कि आप बताएं आपका क्या डिसीजन है, अगर आप चाहते हैं कि पुलिस इस बारे में और इन्वेस्टिगेट करती रहे तो इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे, वरना आप फरहाद को जानते हैं, वो किस तरह का गुंडा गैंगस्टर टाइप इंसान है। वो तो आपका उसको तो आपके घर का एड्रेस भी पता होगा, आपके तो 2 से और बच्चे भी हैं। वो कहते हैं हाँ मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, तो आपको पता है कि वो किस हद तक चला जाएगा। तो पुलिस वाला कहता है कि पुलिस वाला कहता है आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो पुलिस आपके साथ खड़ी है। तो कहती है अंकल कहते हैं पुलिस खड़ी नहीं है, पुलिस तो बैठी हुई है, आप जैसे उसके घर गए थे आप बैठ गए थे। ये इन अंकल से खास दुश्मनी है केआरक्यू को। केआरक्यू ने जान के इनको ऐसी स्टूपिड लाइंस दी हैं ताकि स्टूपिड लगे। इतने स्टूपिड होंगे नहीं अंकल, लेकिन केआरक्यू ने जान के अपनी कोई दुश्मनी निकाली है अंकल से। फिर अंकल एक लंबे 10 मिनट के ना उनको फिजिक्स के डायलॉग समझाते हैं। सिस्टम में ये होता है, सिस्टम में यूं होता है, सिस्टम में एयरप्लेन जब मोशन में होता है तो एयरप्लेन रुक जाता है, फिर एयरप्लेन क्रैश हो जाता है, फिर एयरप्लेन टेक ऑफ करता है, फिर एयरप्लेन लैंडिंग। ओ भाई ओ हो, इतनी लंबी लंबी फिजिक्स की लेक्चर आपने पुलिस वाले को दे दी, पुलिस वाला सुन भी रहा है बड़े आराम से। तो क्या कहे, तो फिर पुलिस वाला कहता है कि फिर क्या डिसाइड किया आपने, कि फिर आप गिव अप कर देंगे या आप फाइट करेंगे। नहीं मैं फाइट करूंगा, क्यों नहीं फाइट करूंगा, ऐसी ऐसी बद्दुआएं दूंगा कि न्यूटन भी हैरान रह जाएगा। उसके बाद अंकल की कैट वॉक आती है, मुझे समझ नहीं आता इतनी लंबी कैट वॉक अंकल की क्यों दिखाई है। अंकल निकलते हैं ऑफिस से, पूरा कॉरिडोर क्रॉस करते हैं, सीधे 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 द होल कैट वॉक, लाइक दे आर शोइंग लाइक दिस होल ब्यूटी शॉट ऑफ द अंकल्स कैट वॉक एंड लाइक द स्लो मो म्यूजिक। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब मकसद था, कि मतलब क्या अंकल लड़ने जा रहे हैं फरहाद से, लाइक क्या हो क्या रहा था। उसके बाद वो एक ना नेम प्लेट पे जूम करते हैं, एक ऑफिस होता है उसमें नेम प्लेट होती है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पंजाब और समथिंग लाइक दैट। सर मंटो को, अच्छा सज्जल को इतना गुस्सा आ रहा होता है सर मंटो पे कि वो फोन ही बंद कर देती है उनका, बिकॉज सर मंटो जो है वो फरहाद की तारीफें कर रहे हैं। मतलब सर मंटो आप का नहीं समझ में आता मुझे कि आप इतने डम किस तरह कोई हो सकता है कि आपको फरहाद जो है वो अच्छा लग रहा है। एनीवे वहां पे दिखाते हैं कि वो FIR कट गई है और बाबर अली नाम है ना उनका, बिन यामीन के घर पे जो है वो फोन कॉल पहुंच गई है। तो उसको बता दिया उन्होंने घर वालों को कि भाई आपके बेटे के खिलाफ जो है FIR कट गई है और आपके बेटे ने तो किसी का मर्डर किया हुआ है। एनीवेज तो फिर वो जाके खदीजा को कहता है कि तुम्हारे बेटे ने एक लड़की को उठवा लिया, फरहाद ने एक लड़की को उठा लिया, बहुत नॉर्मली बहुत कैजुअली फरहाद ने एक लड़की को उठा लिया, अगर उसी के पास अगर जिंदा है तो उससे कहो कि वापस छोड़ के आ जाए। मतलब इनके घर में ये लड़कियों को उठाना, लड़कियों को किडनैप करना, लड़कियों को मर्डर करना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा खदीजा इज वेरी लाइक, खदीजा को आपने देखा है ना स्टोरी से उन्होंने बिल्कुल साइड पे कर दिया है, वो जो मियाँ साहब थे उनको बिल्कुल साइड पे कर दिया है, सुरैया खदीजा की दुश्मनी को बिल्कुल साइड पे कर दिया, अभी फोकस सिर्फ इफ्रा पे है। तो ये अभी बाकी कैरेक्टर्स उन्होंने साइड लगा दिए, 2 टाइम्स ब्रेक ले रहे हैं सारे, अभी सिर्फ ये मेन फोकस में इफ्रा है। तो पुलिस आ जाती है भाई इनके घर पे और अंकल रो रहे होते हैं बेचारे बुरी तरीके से। अच्छा उससे पहले वो फरहाद और उसका भी सीन आता है, उसकी बहन उसको समझाती है कि तुमने मार दिया उसको, तो ही इज टेकिंग नेशनलिटी, हाँ मर गई होगी, 6 दिन से आई नहीं है घर पे तो मरी गई होगी ना, मर गई होगी, व्हाटएवर, हु केयर्स, उसके लिए क्या बड़ी बात है। एनीवेज तो ये आता है, फिर ड्राइंग रूम में सारे बैठे होते हैं ये पुलिस ऑफिसर्स और ये और यूं, जानते थे तुम उसको? थोड़ा बहुत दोस्त थी, थोड़ा बहुत, मतलब ही इज टेकिंग वेरी नॉनशलेंटली कि व्हाटएवर, इतनी क्या बड़ी बात हो गई। मतलब वो इतना जबरदस्त मैनिपुलेट करता है फरहाद जो है अंकल को कि भाई आपको अपनी ही डॉटर का नहीं पता,
हाँ मैं तो जाता था और वहाँ सोया भी हूँ 5-6 मरतबा। मतलब ही इज़ कम्प्लीटली इम्प्लाइंग कि ये जो लड़की है ये ख़राब कैरेक्टर की लड़की है। और क्योंकि KRQ को आपको पता ही है कि कितना शौक है ख़राब कैरेक्टर की लड़की और अच्छे कैरेक्टर की लड़की में डिस्टिंग्विश करने का। एक लड़की जो कॉलेज पढ़ने आई है और उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है, वो ख़राब कैरेक्टर की लड़की है। तो फरहाद की जितनी भी लाइन्स थी वो KRQ ने मेक श्योर किया है कि इफ्रा को बस वो एक कैरेक्टरलेस लड़की जो है वो बता। तो पुलिस वाला कहता है कि आप उसका रेंट भी पे करते थे, बिजली के बिल्स भी पे करते थे। नहीं, मैं तो बस वहाँ जाता था उससे मिलने और मैंने तो बहुत उसके साथ टाइम गुजारा है। तो उसके अब्बा बेचारे ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। हाँ तो ठीक है, अगर मैंने उसकी हेल्प कर दी थोड़ा फाइनेंशियली तो उसमें क्या इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड था या मेरा उसके साथ अफेयर था। ऐसे तो बहुत लड़कों के साथ उसकी तो कह देता है कि फरहाद बड़े आराम से कह देता है कि कोई और लड़का भी तो हो सकता है कि दे रहा हो उसके घर का किराया, उसके घर के बिल्स। मतलब जिन लड़कियों के एक लड़का जिस लड़की का दोस्त हो सकता है तो उस लड़की के तो और भी लड़के दोस्त होते होंगे। तो बहुत ही इजीली और बहुत ही स्मूथली जो है ना वो पूरा का पूरा ब्लेम अंकल पर डाल देता है कि भाई आपकी बेटी का कैरेक्टर इतना खराब है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा हूँ, लाइक आई डोंट, मुझसे तो मेरा तो इस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे घर में, मैं किस तरीके से इस चीज़ से लिंक्ड कैसे हूँ। उन्होंने नोटिस किया। फिर एक बहुत ही वियर्ड सीन आता है, सज्जल बैठी हुई है अपनी फुप्पो के साथ और उसकी फुप्पो जो है ना मुस्तकिल उसको जैसे कहते हैं ना जख्मों पे नमक छिड़कना कि कल तो वो तुम्हें अंगूठी पहना के अपनी बहू बना लेंगे और कल तुम जो है ना, मतलब शी इज ट्राइंग टू मेक हर फील कि मतलब सज्जल सामने से कह दे कि नहीं मैं तो ये नहीं चाहती और मेरी तो जिंदगी में आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ, नहीं मुझे ये रिलेशनशिप अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। तो फुप्पो जो है ना बहुत ही स्नीकीली उसको भड़का रही हैं, लेकिन सज्जल वो इफ्रा वाला टॉपिक स्टार्ट कर देती है कि मेरी कहीं भी बात सच हो गई और मैंने तो मजाक मजाक में कहा था कि 6 दिन पहले वो मर गई है और आपको पता है कि इफ्रा मर गई। एंड फुप्पो जस्ट लुकिंग एट हर लाइक, तो इसलिए अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम पे कह रहे हैं कि सुरैया ने इफ्रा को मरवाया, लेकिन सुरैया इफ्रा को कैसे मरवा सकती है? मतलब इस सुरैया वर्किंग विद फरहाद, सुरैया और फरहाद मतलब आपस में क्या कुछ करके गैंग अप करके उन्होंने इफ्रा को मारा है? सुरैया किस तरीके से जानती होगी इफ्रा को? लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पता नहीं किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि सुरैया का भी कुछ हाथ है, बिकॉज ये जो सीन आया है ना ये बहुत ही वियर्ड, आपने देखा था इसकी अंडरटोन कितनी ज्यादा वियर्ड थी, जहाँ पे सज्जल कह रही होती है कि उसकी उसकी फुप्पो कहती है क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ ऐसा हुआ है फुप्पो, वो तो 6 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आया, 6 दिन से उसने फोन भी नहीं उठाया। फुप्पो कहती है मतलब एक बहुत ही सस्पेंसफुल और एक बहुत ही वियर्ड सा वो सीन था, पता नहीं क्या ही वो सीन था। एक तो ये जो बंदा है ना, फियोन्से के सीन्स बार बार आ रहे थे, मेरा मूड ऑफ हो रहा था। जब तुम छोटी थी, जब हम छोटे थे तो जो है हम भागते थे और एक बार हम गेम खेल रहे थे तो तुम बेहोश हो गई थी और मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा के फिर लेके गया था। अभी अभी मुझे पता चला है कि वो KRQ के कोई बेटे बेटे हैं, तो अब ऑफ कोर्स उनके सीन्स तो आएंगे और बार बार आएंगे, तो आप लोग को उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। जब से मुझे पता चला है कि वो KRQ के बेटे हैं, मैं थोड़ा उनको, मुझे वो वियर्ड से लगने लगे हैं। एक तो ना बार बार वो आके रास्ता रोक रहे हैं, बहुत ज्यादा अनोइंग है। और सेकंड अनोइंग पर्सन जो है ना वो सर मंटो है। मिस मारियो को फोन करके कह रहे हैं कि महमल ने मेरे ना मुंह पे फोन बंद कर दिया। हाँ तो आपकी हरकतें ऐसी हैं, वो क्या करेगी? और नहीं महमल मुझसे गुस्सा क्यों है, अगर आप उसकी जगह होती तो किस बात पर गुस्सा होती? मिस मारिया कहती है हर बात पे। मिस मारिया भी बहुत चिड़ी हुई है इनसे, बिकॉज ही सो स्टूपिड। भाई लड़कियां इतने स्टूपिड आदमियों को से नहीं डील करना चाहती हैं। गर्ल्स वांट अ स्मार्ट मैन जिसके पास दिमाग हो। ये तो बिल्कुल ही इतना गधा है, इसके अंदर जो कबूतर का दिमाग है ना वो इनसे ज्यादा होगा। अच्छा, आई लव द फैक्ट कि जब सज्जल फिर जाती है आसिफ रज़मीर से बात करने के लिए, तो वो उनको कहता है कि उसको बहुत प्यार से समझाता है, बहुत पोलाइटली, कि देखो तुम्हारी आज मंगनी है, तो सब लोग जो है तुम्हारी शादी अटेंड करने के लिए आए हुए हैं, और अगर लोगों को ये बात पता चलेगी सबसे पहले तो लोग ये पूछेंगे कि तुम इस तरह की लड़की से तुम्हारी दोस्ती क्यों थी, तुम इस तरह की लड़की को जानती क्यों थी? और उनकी बात 100% सही है भाई। इतनी वो स्कैंडलस टाइप ऑफ उसका बता दी है ना, अब KRQ ने लिखा है इस तरीके से, कितना उसका शेडी और स्कैंडलस तरीके से उसकी बात अब फैला दी है कि वो लड़के गायब हो गई और 2 साल से उसने घर पे बात नहीं की है। तो वो बहुत ही पोलाइटली उसको समझाते हैं। मुझे उनका ये शेड ना बहुत अच्छा लगता है, ये जो सिराज अमृतसरी है, बिकॉज वो गैंगस्टर है, वो थप्पड़ मार के भी सज्जल को साइड पे कर सकते हैं कि दिमाग ठीक है तुम्हारा, ये क्या बकवास करी हो, लेकिन वो इतना पोलाइटली उससे बात करते हैं, इतने प्यार से उसे समझाते हैं कि तुम्हारी मंगनी है, तुम उस पर फोकस करो, ना कि इस लड़की पे जिसको तुम जानती नहीं हो। तुम्हारी तो इससे दोस्ती होनी नहीं चाहिए थी इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि हमारे घर में इस तरह का माहौल ही नहीं है कि तुम हमारे घर की लड़की ऐसी लड़की से दोस्ती करे जहाँ पे जो लड़की बॉयफ्रेंड बना रही है और
2 साल से घर पे बात नहीं की उसने। अच्छा, फिर पुलिस वाले के पास ना कोई वो आता है, बेचारा उनका सबॉर्डिनेट है, उनसे पूछता है सर हम कुछ नहीं कर सकते, तो कहता है नहीं। तो बेसिकली बता दिया है कि पुलिस इज कम्प्लीटली यूजलेस इन दिस सिनेरियो, बिकॉज इन लोगों के पास इतनी पावर है, ये इतनी गैंगस्टर है बड़े लेवल के, कि पुलिस इनके आगे पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। पुलिस बेचारी अपनी ही जॉब इनकी चली जाएगी इफ दे ट्राई टू डू समथिंग, यू नो, द पुलिस पीपल कुड बी किल्ड एज वेल, बिकॉज फरहाद इतना बड़ा गैंगस्टर है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। आई एम वेरी एक्साइटेड। आई एम सॉरी दिस वीडियो वाज अ लिटिल डिलेड बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग। अभी भी मुझे तमाशा का पता नहीं है, मैं करूंगी कि मैं नहीं करूंगी। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ करें, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, हम तो इन सेलिब्रिटीज को जानते ही नहीं, अपना टाइम वेस्ट मत करें। सो आई विल सी, ओके आई विल सी, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग। आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रही हूँ, जो जो पार्ट्स मुझे अच्छे लग रहे हैं उसका मैं आप लोग को बता दूंगी। बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लीव योर कमेंट्स। आई लव यू ऑल, आई लव all the comments that you guys leave for me. मैं सारे comments आप लोग को पढ़ती हूँ, and I hope you guys like this video. Okay, bye. Take care.